Okay, let's start with a quick introduction. So my name is Waqas Muzammil, and I'm the CEO and founder of Study 360. So before I started first Study 360, I completed my education in US, and I'm a mechanical engineer by profession. And I've been working as a mechanical engineer for close to 6 years now. So I do have experience in the industry, especially when it comes to working in Western countries. So when we are helping students get their visas and get their admissions, we do keep in mind that what the industry would look like for them in their respective majors. And besides me, the staff that we have also are graduates from either UK or US, so we have a better understanding of the whole process and everything. So basically, next thing is like why do we choose Study 360? We are a US-based consulting firm, and our focus is to help students with their career and education, as I mentioned. So we have a head office in US, and our regional office is in Pakistan as well. So why are we different from other consultants? Like, we have our local representation in the US. So when we are working for you for different universities, we are working with them locally and have that relationship with them that can guarantee you an admission and also get you better scholarships. So we also offer IELTS and Duolingo classes. We are a member of the British Council in Pakistan as well. And we have foreign trained instructors that help you with the IELTS and Duolingo classes too. I'm going a little bit faster because we want to leave time for questions in the end. Okay, so let's do this. I'll stop sharing my screen. Okay, तो अब ऐसा कर लेते हैं, आप ना मुझे you can type in the chat जो भी questions हो किसी को. Previously मैं एक brief आपको वो दे देता हूँ overview US की education के हवाले से, and then we can dive into specific questions. So basically, when there are some myths that are in the market, there are some information that people are misleading. So first I want to tackle them a little bit. So number one, जब आप US के लिए apply कर रहे हैं, you don't need to pay any tuition fees in advance. Unlike Australia या UK में, यहाँ पे US में you don't have to pay any fees in advance क्योंकि ना government की requirement है, ना universities की requirement है. So basically, you can literally process your visa just paying the embassy fees and paying the government fees. उसके अलावा basically you get your visa, you get your ticket, आप यहाँ पे आ जाओगे, and then you pay your fees. Even it's bachelor's, master's, doesn't matter, same rule applies. Bachelor's में if you have studied in English, तो हम आपका admission without IELTS या without Duolingo हम करवा के दे सकते हैं आपको. For masters, it gets a little tricky. तो उसमें we do need IELTS or Duolingo result. अगर वो नहीं है आपके पास, तो universities do offer, like you can say, English programs or foundation programs. तो उनकी बेस पे then you'll study those for 6 months या 1 साल के लिए आप वो पढ़ाई करोगे, and then you move on to your actual degree. तो उसमें there are options for masters as well, लेकिन जो bachelor's में admission होगा, that is basically focus on you'll get a full unconditional admission without IELTS or without Duolingo in bachelor's. जो गवर्नमेंट की फीस आती है, there is a service fees जो गवर्नमेंट आपसे लेती है, यूएस की गवर्नमेंट, वो होती है $350. जो आपकी एम्बेसी फीस है वो होती है $160. सर्विस फीस आपकी ऑनलाइन पे होती है, और एम्बेसी फीस जो वीजा फीस है आपकी, वो आपकी पे होती है एलाइड बैंक में. वो फिर हम उसके हिसाब से हम लोग वो जनरेट कर देते हैं आपको वाउचर, एंड आप किसी भी एलाइड बैंक की ब्रांच में जाके आप वो पे कर सकते हैं. तो ओके, आई थिंक आई हैव कवर्ड बेसिक ओवरव्यू. ऐसा करते हैं कि देयर इज अ क्वेश्चन, तो आप लोग चैट में अपने क्वेश्चंस लिस्ट आउट कर दें, एंड वी कैन गो थ्रू देम थ्रू द लिस्ट. And then in further, अगर कोई further किसी को specific questions हो, we can dive into those as well. So I think the first one here is what about Schengen visa? So basically हम लोग जो process कर रहे हैं countries का, हम लोग UK, USA, Canada, Australia and Germany, हम इन 5 countries में focus कर रहे हैं.
तो स्पेसिफिकली शेंगन वीजा तो वैसे शेंगन तो बेसिकली होता भी विजिट के लिए है फॉर यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन अगर आपने जर्मनी का स्पेसिफिकली प्रोसेस करना है तो वो प्रोसेस हम लोग जरूर करते हैं। यूरोप में एट द मोमेंट हम लोग जर्मनी को ही टारगेट कर रहे हैं। और जस्ट अ लिटिल ब्रीफ इंट्रो ऑन जर्मनी। सो जर्मनी में आपको हम इंशाल्लाह 100% स्कॉलरशिप दिलवा सकते हैं, लेकिन उसमें आपके जो अकोमोडेशन और लिविंग एक्सपेंसेस है उसके लिए आपको ब्लॉक अकाउंट वहां पे अरेंज करना पड़ता है, अबाउट 10 to 11,000 यूरोस का। दैट्स अ वेरी ब्रीफ। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि इफ यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट जर्मनी या अदर कंट्रीज एज वेल, तो यू कैन कांटेक्ट द टीम और माई सेल्फ। मैं इंशाल्लाह जब ये हम आपको ये मीटिंग हम शेयर करेंगे, विल शेयर यू द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो हम इंशाल्लाह उसमें फर्दर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो आज विल ट्राई टू फोकस ऑन यूएसए। So specifically, if people have questions about USA, we can start targeting those. Which one do you suggest, German or UK? Currently, between Germany and UK, आजकल UK में there's a rush of students. बहुत ज़्यादा students वहाँ जा रहे हैं, जिसकी वजह से getting a job after graduation is a little bit tricky, and उसकी वजह से rents and everything are also increased. So compared to that, Germany is not a bad option. लेकिन the only problem in Germany that we see is Germany में जो लोग अक्सर back out कर जाते हैं, Germany में obviously there's a language barrier. UK में English speaking है, you can communicate. Germany में आपको उस हिसाब से थोड़ा communicate करना पड़ेगा. So there is that factor. लेकिन अगर personally if you believe that you can tackle that, तो definitely Germany is not a bad option. Throughout education, so I don't need IELTS. अगर आपने बैचलर्स में एडमिशन लेना, बिकॉज चांद इज आस्किंग, चांद मलिक इज आस्किंग, लाइक एज यू मेंशन आई स्टडी इन इंग्लिश थ्रू आउट माय एजुकेशन, सो आई डोंट नीड आईएलटीएस। करेक्ट। अगर आपने बैचलर्स में एडमिशन लेना है, यू डू नॉट नीड आईएलटीएस। अगर आपने मास्टर्स में जाना है, then you do need IELTS या Duolingo. So basically Duolingo जो है, there is an alternate to IELTS. Number one is Duolingo is cheaper. IELTS आपका पाकिस्तान में currently like globally $200 उसकी फीस है, कंपेयर टू Duolingo जो है वो $49 या $50 है। और Duolingo जो है आपका रिजल्ट्स 2 to 3 डेज में आ जाता है और ऑनलाइन होता है घर में बैठ के। तो बेसिकली व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन IELTS, you have to have a certain dates और आपको वहां पे फिजिकली जाके एग्जाम देना पड़ता है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा लोग पीपल आर स्पेशली कोविड टाइम्स में पीपल आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स आईएलटीएस के घर बैठ के आराम से क्लियर हो जाता है, और अबाउट 90% यूनिवर्सिटीज Duolingo एक्सेप्ट कर रही हैं। तो वी डू ऑफर क्लासेस इन बोथ। अगर आपने पहले लेकिन Duolingo ओनली यूएस में एक्सेप्ट होता है, और कनाडा में कुछ यूनिवर्सिटीज कर रही हैं, लेकिन मेजरली इट्स इन यूएस। तो बाकी अगर आप ऑस्ट्रेलिया या यूके या जर्मनी में प्रोसेस करेंगे, देन आप Duolingo नहीं यूज कर सकते उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर एडमिशंस इन एमफिल IELTS इज कंपल्सरी इन जर्मनी। जर्मनी में आपने अगर इंग्लिश में पढ़ाई करनी है, यू नीड IELTS फॉर बेसिकली फॉर एवरी लेवल। आपने बैचलर्स में लेना है, आपने मास्टर्स में लेना है, या पीएचडी में लेना है, तो यू नीड IELTS फॉर ऑल ऑफ देम। उसके अलावा आपको जर्मनी में एडमिशन नहीं लेगा अनलेस आप जर्मन लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं, तो देन यू विल गो फॉर द फाउंडेशन कोर्स। तो वो ऑप्शन फिर उस पर सेपरेट आ जाती है। और एक जरूर आज द क्वेश्चन, सो देयर इज अ पॉइंट आई वांट टू मेक। थोड़ा सा आपको एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं, वेस्टर्न कंट्रीज में स्पेशली यूएस, यूके, कनाडा एंड जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, लाइक इन कंट्रीज में एमफिल, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एमफिल। तो बेसिकली आपका वो चलते हैं इयर्स ऑफ एजुकेशन। सो देयर इज 2 years। जब आपने अगर पाकिस्तान में जैसे 2 years की डिग्री करें, तो यू गेट अ बैचलर्स डिग्री, लेकिन इन वेस्टर्न कंट्रीज में यू गेट अ डिप्लोमा और एसोसिएट। उसके बाद यहाँ पे बैचलर्स कंसिडर होता है 4 years का। तो अगर आप कहीं पे मास्टर्स में एडमिशन लेना चाहेंगे, तो 4 years मींस आपको 16 years एजुकेशन कंप्लीट करनी है, and then you get admission in your masters या वेस्टर्न कंट्रीज में। एंड आफ्टर मास्टर्स फॉर 2 years या यूके में अगर 1 year का है, यू कैन गो फॉर पीएचडी। तो वहां पे एमफिल का एज सच नहीं आता, तो वो आप बैचलर्स, मास्टर्स और फिर आप डायरेक्ट पीएचडी में चले जाते हैं। देयर आर अदर सर्टेन साइड रूल्स भी हैं, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू मैं जो आपको बताना चाह रहा था। During PSW, is it compulsory to get a sponsored visa in UK? PSW basically is a work permit for UK.
तो उसके अंदर इवन इफ यू डोंट हैव लाइक यू नीड अ जॉब, अगर वो आप इवन आप यूएस में भी वर्क परमिट लेते हैं, यू नीड अ जॉब, तो बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ जॉब देन द गवर्नमेंट सीज इट कि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं बनता कंट्री में रुकने का, तो देन दे आर फोर्स्ड ऑन कि भी ठीक है, क्योंकि इफ यू ग्रेजुएट फ्रॉम देयर लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो यू डोंट हैव अ ग्राउंड टू स्टैंड ऑन, तो वो आपका जो स्टूडेंट वीजा है जिसकी बेस पे आपको वर्क परमिट मिला है यूएस में या यूके में या कनाडा में, वो आपका फिर ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाता है, तो यू हैव टू फॉलो दैट स्पेसिफिक राउट, और आपको वो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट टाइम्स है कंपेयर टू like UK में you have a certain time period, US में you have a certain time period, but उस time period में it's recommended to take a job, otherwise वो जो आपका F1 जो भी आपका student visa F1 तो US में है, तो basically that gets terminated. There was a question जब हमने advertise किया था WhatsApp पे, so there was a question regarding dependents. तो बेसिकली ये है कि अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं and you're applying for in the US, तो आपके बच्चे हैं, बीवी है, you can take them with you. अगर आप स्टूडेंट वीजा अप्लाई कर रहे हैं, स्टूडेंट वीजा आपका होता है F1 वीजा, जो आपके डिपेंडेंट्स का वीजा होता है वो होता है F2 वीजा, तो वो डेफिनेटली हम अप्लाई कर सकते हैं, डजंट मैटर आपकी कितनी बड़ी फैमिली है, आप किस लेवल के एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, और ये एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग भी हम प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप फॉरेन नहीं करना चाहते, आप वहां पे जाके लाइक लेट्स से आपकी मास्टर्स है, 2 इयर्स का मास्टर्स है यूएस में, आपने स्टार्ट किया, आफ्टर 6 मंथ्स आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, देयर इज एन ऑप्शन, आप हम उसके हिसाब से भी हम प्रोसेस कर सकते हैं, तो देयर इज नो इशू इन दैट। Moving on, Australia or Germany for study visa, which one is best from every aspect? Again थोड़ा सा जैसे मैं यूके और जर्मनी का कंपैरिजन कर रहा था पहले, so basically that similar comparison is for ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में थोड़ा सा लेवरेज ये है कि ऑस्ट्रेलिया आपको एज अ स्टूडेंट और आपके डिपेंडेंट्स को भी फुल वर्किंग राइट्स दे देता है कंट्री में, ये अभी तक कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज ने नहीं किया, वो लिमिटेड वर्किंग राइट्स देते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया आपको फुल वर्किंग राइट्स देता है, तो उससे ये है कि इफ यू आर ट्राइंग टू बी सेल्फ फाइनेंशियल सेल्फ सस्टेनेबल, आप वहां पे जाके यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट, और आप उसके हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। सिमिलरली यूएस या यूके में या कनाडा में अगेन लीगली हिसाब से आपको नहीं होता, लेकिन देयर आर पीपल वर्किंग ऑन कैश जॉब्स, और हमारे काफी क्लाइंट्स हैं जो सेल्फ सस्टेन है विद इन यूएस, जिन्होंने अपनी बैचलर्स भी कंप्लीट की है, आगे फैमिलीज भी मेंटेन की हैं, एंड दे आर मूविंग एवरी डे फॉरवर्ड। Is IELTS necessary for USA or we can also take PTE? अगर आप यूएसए के लिए आइल्स की तरफ नहीं जा रहे, तो देन आप डुओलिंगो की तरफ जा सकते हैं या टोफल की तरफ जा सकते हैं। टोफल इज नॉट वाइडली नोन, लेकिन आइल्स एंड टोफल आर हैंड इन हैंड, लेकिन टोफल हैज सो मेनी डिफरेंट वेरिएशंस, तो अक्सर लोग नहीं जाते उस तरफ, लेकिन पीटीई जो है वो यूएस में एक्सेप्ट नहीं होता। पीटीई जो है वो आपका ऑस्ट्रेलिया में वाइडली एक्सेप्टेड है, अगर आइल्स की रिप्लेसमेंट आप ऑस्ट्रेलिया में ढूंढ रहे हैं तो पीटीई डेफिनेटली आप कर सकते हैं, और अगर आप यूके में भी कुछ हद तक पीटीई एक्सेप्टेड है, बाकी उसके अलावा पीटीई नहीं होता। सिमिलरली जैसे मैं डुओलिंगो का कह रहा था, डुओलिंगो बिसाइड्स यूएस एंड इन सम केसेस कनाडा के अलावा वो कहीं एक्सेप्ट नहीं होता। आइल्स का थोड़ा सा ये बेनिफिट आता है, आई नो इट्स एक्सपेंसिव एंड एवरीथिंग, लेकिन आइल्स का थोड़ा ये मेन बेनिफिट ये आ जाता है कि ग्लोबली एक्सेप्टेड है, तो अगर आपने लेट्स से आपने 2 कंट्रीज टारगेट में रख लिया, लेट्स से यूएस और ऑस्ट्रेलिया आपने टारगेट में रखा हुआ है, तो देन आप एक एग्जाम दे के यू कैन अप्लाई इन बोथ कंट्रीज, वरना आपको डुओलिंगो अलग देना पड़ेगा और पीटीई अलग देना पड़ेगा, तो दोनों की अपनी फीस है, दोनों की अपनी प्रिपरेशंस हैं, तो इन दोस केसेस इट डेफिनेटली हेल्प्स कि आप आइल्स दे दें। अगर आपका कंट्री सिलेक्टेड है, इट्स ओनली वन कंट्री, देन अगर आप आइल्स नहीं देना चाहते, देन आप उसको ऑल्टरनेट राउट की तरफ जा सकते हैं। अच्छा, let's keep moving with the questions. Is also okay. Suppose I don't get a job in PSW, what's the next ways? तो basically अगर PSW आपका नहीं होता, and similarly ये देखें, ये है specific UK question, लेकिन I will focus on USA and UK both. So basically in countries में ये है, to be honest with you all, अगर आपका in that time period नहीं होता एडमिशन, because आपको जो वर्क परमिट मिला है वो मिला है as a student। यूएसए में ये रूल है कि आपको आप यूएस अगर आपका
I-20 जो है, जो बेसिकली गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट होता है, एक तो वीजा है जो एम्बेसी देती है, यहाँ पे जो मैं आपको सर्विस फीस कह रहा था $350 की, उसके बेस पे आपको मिलता है I-20। अगर आपका I-20 यूएस के अंदर वैलिड है और अगर आपका वीजा एक्सपायर भी हो जाता है तो आप यूएस में रुक सकते हैं। तो इन केस आपका वर्क परमिट आपको मिल गया है एंड यू डोंट फाइंड वर्क, यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू योर एजुकेशन, जिसकी बेस पे आपका I-20 वैलिड हो जाएगा एंड यू कैन कंटिन्यू स्टेइंग इन द यूएस। इन द मीन टाइम आप जॉब ढूंढ के व्हेन यू फाइंड अ जॉब यू कैन स्विच। तो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। यूके में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि यूके में इवन टू स्टे इन द कंट्री यू नीड अ वैलिड बेसिकली, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट इशू डॉक्यूमेंट अलग नहीं होता। तो यूएस में थोड़ा सा इस हिसाब से आपको लेवरेज मिल जाता है कि यू कैन स्टे इन द यूएसए लॉन्गर अ लिटिल बिट इफ यू वांट, इफ यू डोंट फाइंड अ जॉब इन द टाइम पीरियड, क्योंकि 6 मंथ्स आपको मिलते हैं अप्रोक्सीमेटली। लाइक यूजुअली लोग स्पेशली इन द यूएस हमने देखा है, क्योंकि यहाँ की मार्केट काफी ब्रॉड है, यहाँ पे मंथ एंड हाफ आफ्टर ग्रेजुएशन, इससे ज्यादा मैंने आज तक पर्सनली मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स थे और हम उसके बाद जो मेरे क्लाइंट्स आए हैं, आई हैव नॉट सीन एनीवन वेट मोर देन मंथ या मंथ एंड हाफ अपनी जॉब लेने से पहले, स्पेशली यूएस मार्केट के अंदर। तो यहाँ पे इफ दे गिव यू 6 मंथ्स, इफ द गवर्नमेंट इज गिविंग यू 6 मंथ्स, उसमें कोई भी इशू नहीं होता, आप आराम से अपना पूरा टाइम मैनेज कर सकते हैं। How much will be approximately initial expense for Australia study visa? देखिए ऑस्ट्रेलिया का मैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया में ये है कि इट्स अबाउट 600 to 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स आपकी जो गवर्नमेंट की फीसेस आ जाती हैं। उसके बाद ये है कि ऑस्ट्रेलिया का रूल है यू हैव टू पे एटलीस्ट 1 सेमेस्टर की फीस इन एडवांस। अब वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और आपकी एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है। तो उसकी बेस पे अब डिपेंडिंग ऑन दैट आपका 30 से 50 लाख के दरमियान में योर सेमेस्टर फीसेस, तो वो आपने पे करनी होगी टू गेट योर COE, जो सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट है, सिमिलरली टू I-20 इन यूएसए। तो बेसिकली अप्रोक्सीमेटली इनिशियल एक्सपेंस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में एंड यूके में यू हैव टू पे योर फीस इन एडवांस, जिसकी वजह से वो जो आपका इनिशियल एक्सपेंस होता है वो स्काई रॉकेट कर जाता है एक सर्टेन अमाउंट पे। तो इनिशियली जो मैं आपको यूएसए का बात कर रहा था कि जो हम लोग एटलीस्ट प्रोसेस कर, देयर आर मिथ्स इन द इंडस्ट्री, आपको लोग गाइड करेंगे कि नहीं यूएसए के लिए भी पे करना जरूरी है, व्हिच इज नॉट ट्रू। यूएसए के लिए आपको इनिशियल कोई एक्सपेंस नहीं होता, तो इन दोस केसेस आप उसको मैनेज कर सकते हैं, तो आप उसमें पे कर सकते हैं फीस इनिशियल। आपने जब इनिशियल फीस आपने पे कर दी और ऑस्ट्रेलिया के लिए, और आपने गवर्नमेंट की फीस पे की, देन यू प्रोसेस योर वीजा। यूएसए में ये है कि जो आपकी ट्यूशन फीस है वो आप पे करते हैं व्हेन यू गेट टू एक्सक्यूज मी व्हेन यू गेट टू यूएस। और उसके अंदर भी थोड़ा सा कंटिन्यू दिस यूएसए के हवाले से कि बेसिकली जब आप जो सेमेस्टर की फीस है, even though you have to pay when you land in USA, उसके अलावा ये ऑप्शंस आ जाती हैं कि there are like about 80% या 85% यूनिवर्सिटीज ये भी लेवरेज आपको दे देती हैं कि यू कैन प्रोसेस पेमेंट प्लान आप बना सकते हो यूनिवर्सिटी के साथ। उसमें ये होता है कि वो बेसिकली आपसे $100 to $200 दे चार्ज यू, ठीक है, उसकी बेस पे आप अपना वो प्रोसेस कर सकते हैं। जो स्टूडेंट वीजा बेसिकली आप अपनी जो फीस है वो आप अपना पेमेंट प्लान बना लेंगे सेमेस्टर का, आप फिर मंथली पेमेंट्स करेंगे, तो वो उसमें आपको थोड़ी फर्दर लेवरेज मिल जाती है फीस पे करने के हवाले से। और अगेन एवरेज फीस अगर हम बात करें यूएसए की, तो बैचलर्स के लिए विद स्कॉलरशिप्स एंड एवरीथिंग इट्स अबाउट $12,000 एनुअली पूरे साल का। और अगर आप उसको देखें मास्टर्स को, तो 15,000 एनुअली आपकी फीस हो जाती है। तो बेसिकली इसमें ये आ जाता है आपका कि ये जो मैं आपको फीस बता रहा हूँ, दिस इज द फीस दैट इज इजीली मैनेजेबल इन यूएस। एंड अगेन मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैं आपको रियल लाइफ लोगों की स्टोरीज की वजह से बता रहा हूँ। आई एम नॉट जस्ट सेइंग रैंडम नंबर्स, ये मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स बता रहा हूँ। देयर आर पीपल जिन्होंने अपना पूरा एक्सपेंस यूएस में मैनेज किया, क्योंकि देखिए पीपल यूजुअली
जर्मनी की तरफ जाते हैं या फोकस कर रहे होते हैं कि हमें फुल स्कॉलरशिप आ जाए या कुछ और, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में। लेकिन जिन भी यूरोपियन कंट्रीज में आप फुल स्कॉलरशिप ले रहे हैं, आपको अपने एक्सपेंसेस के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ती है। यूएसए में ये है कि यू आर नॉट गेटिंग अ फुल स्कॉलरशिप एज पर से, आपको पार्शियल स्कॉलरशिप आ जाती है। लेकिन इफ यू वर्क लाइक आप अपना जॉब करें साथ साथ एज अ स्टूडेंट, तो आप अपने जो एक्सपेंसेस हैं वो इजीली आप मैनेज कर सकते हैं। फिर जो थोड़ा एक यूएस का बेनिफिट ओवर अदर कंट्रीज, एंड आई डोंट थिंक सो एनीवन वुड डिनाई इट, वो ये आ जाता है आपका मेनली कि आपको यूएस में अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। आप हमेशा सुनते होंगे यूएस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, दैट इज नॉट अ लाई। आप, क्योंकि हम लोग 5 डिफरेंट कंट्रीज में प्रोसेस करें स्टूडेंट वीजास, एंड ट्रस्ट मी, अभी इन द लास्ट 3 मंथ्स हमारे पास यूके के 3 क्लाइंट्स आए थे that were interested in moving from UK to USA, क्योंकि उन्होंने वहां पे अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया था and they were not finding a job। आज तक मैं यूएसए में, मुझे अबाउट 11 इयर्स होने वाले हैं, आज तक मैंने यूएसए में किसी को नहीं ऐसे देखा जो प्लान करे यहाँ से मूव अप करने का। हाँ, पाकिस्तान कोई चला जाता है बेस्ड ऑन देयर फैमिली इश्यूज एंड स्टफ, लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे मैंने कहा, मंथ या मंथ एंड हाफ के अंदर अंदर मैंने देखा है लोगों को जॉब मिली है एंड दे हैव फाउंड वर्क। तो उस हिसाब से देयर इज इवन कोविड में जब सारे कंट्रीज ने अपने स्टूडेंट वीजास बंद कर दिए थे, यूएसए वाज स्टिल प्रोसेसिंग स्टूडेंट वीजास। स्टूडेंट्स यहाँ पे आ भी रहे थे, स्टूडेंट्स यहाँ पे काम भी कर रहे थे एंड एवरीथिंग। तो उस हिसाब से आपको थोड़ी सी जो एक लैंग्वेज मिलती है, डेफिनेटली देयर इज दैट एक एनवायरनमेंट है ओवरऑल के यूएसए का वीजा मुश्किल है कंपेयर टू अदर कंट्रीज, यस। लेकिन अगर आप की प्रोफाइल अच्छी है एंड यू हैव अ गुड कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ, जब क्योंकि हम आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराते हैं जो यूएसए के लिए होगा, तो जो वीजा इंटरव्यू है, इफ यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट, आपकी क्योंकि हमारी देखिए मेन कोशिश हमारी होती है कि जो आपकी एक्चुअल प्रोफाइल है हम उसी को ही पॉलिश करते हैं, हम उसी की बेस पे उसी से रिलेटेड चीजों में ही आपका एडमिशन होता है। क्योंकि जब आप वहां पे एमबेसी इंटरव्यू में जाएंगे, वी डोंट वांट यू टू पैनिक, कि आपको ये ना लगे कि हमने कोई गलत डॉक्यूमेंट अटैच किया हुआ है या मैं कोई बात उनको गलत कर रहा हूँ जो रियलिटी में नहीं थी। तो हम वो चीजें ऑलरेडी अवॉइड करते हैं। उससे फिर ये है कि एटलीस्ट यू गेट अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग योर यूएस वीजा। ओके, लेट्स कीप कंटिन्यू। अच्छा, यूके में अगेन क्वेश्चन है रिगार्डिंग इनिशियल एक्सपेंसेस। तो यूके में अगेन जो आपको स्टूडेंट फीस वहां पे कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया थोड़ी कम है। अगर ऑस्ट्रेलिया में बिटवीन 30 एंड 50 लाख रुपीस है, यूके में आपकी जो इनिशियल फीस आ जाएगी, जो ट्यूशन फीस आपने पे करनी है, दैट इज समवेयर बिटवीन अराउंड 20 लाख, जो आजकल डॉलर बहुत फ्लक्चुएट करता है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली करंटली 20 लाख के करीब आपको ट्यूशन फीस देनी पड़ती है। एंड उसके अलावा इट्स अबाउट 500 ब्रिटिश पाउंड्स बेसिकली, जो आपका गवर्नमेंट प्रोसेसिंग है। अच्छा, इसमें एक और चीज है, जब आप यूके और ऑस्ट्रेलिया का करते हैं तो यू आल्सो नीड टू डू अ मेडिकल। आपको वो स्पेसिफिक मेडिकल कराना पड़ता है। जो यूएसए के लिए जब आप प्रोसेस करते हैं आपको सर्टेन मेडिकल कुछ नहीं कराना पड़ता। जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो तो हर कंट्री में आपको लेनी पड़ती है, वो प्राइस फ्लक्चुएट कर जाती है। अच्छा, फिर क्वेश्चन है इनिशियल एक्सपेंस फॉर यूएसए एट बैचलर्स लेवल। इसमें ये आ जाता है कि इनिशियल एक्सपेंस मैं आपको विदाउट टिकट बता दूंगा वीजा मिलने तक। उसमें जैसे मैंने मेंशन किया है, $350 आपकी सर्विस फीस है या गवर्नमेंट की फीस है, $160 आपकी एम्बेसी फीस है या वीजा फीस है। उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस आ जाती है। अब वो बैचलर्स लेवल पे 20 से 60, $0 से $60 के दरमियान है, क्योंकि कुछ में जिनके साथ हमारी एग्रीमेंट्स है वो हम आपकी वेव ऑफ करवा देते हैं। और मास्टर्स लेवल पे वो आपकी आ जाती है $0 to $100। तो किसी की फ्री होगी, किसी की 30, किसी की 80, वो डिफरेंट बेस्ड ऑन द यूनिवर्सिटी वो वेरी करती है। और अगेन जहाँ पे हम लोग आपकी वेव ऑफ करवा सकते हैं, जिनके साथ एग्रीमेंट्स है वो हम डेफिनेटली वेव ऑफ करवा देते हैं आपको। there have been a case in the past कि हमने स्टूडेंट ने $60 की फीस थी पे की, लेकिन इन द फ्यूचर वो हमने फिर रिफंड करवा के स्टूडेंट को वापस भी दिया है।
तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि उसके अलावा जो है मैं आपको थोड़ा एक्सपेंस का कंप्लीट कर लूं कि उसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया ये बनते हैं $510 जो फीसेस आ जाती हैं। उसके बाद हम जितने भी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेंगे उनकी एप्लीकेशन फीस होती है। उसके अलावा जो हमारे सर्विस चार्जेस हैं वो आ जाते हैं, जो ब्रीफली मैं थोड़ा आपको बता दूं। यूएसए के लिए हमारे सर्विस चार्जेस हैं टोटल $200 हम लेते हैं यूनिवर्सिटी एडमिशन का, और 250 हम लोग लेते हैं वीजा फीस का। एंड अगेन जब आप आइल्स और डुओलिंगो हमारे साथ करते हैं या आप ये दोनों सर्विसेज कंबाइन करते हैं कि वीजा और एडमिशन, तो हम फर्दर इसमें आपको डिस्काउंट दे देते हैं। किसी केसेस में $50, किसी केसेस में $60, हमने $70 तक भी डिस्काउंट दिए हुए हैं। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि आप कितनी सर्विसेज ऐड ऑन कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर वो चीजें मैनेज हो जाती है। तो मास्टर्स लेवल पे इनिशियल एक्सपेंस, अगेन बैचलर्स और मास्टर्स का जो वो गवर्नमेंट फीस है दैट इज द सेम। आपको बेसिकली एप्लीकेशन प्रोसेस में थोड़ा सा जो फर्क आ जाता है वो ये है कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फीस थोड़ी मास्टर्स लेवल पे ज्यादा होती है, बाकी उसके हिसाब से इनिशियल एक्सपेंस मास्टर्स या बैचलर्स यूएसए के लिए डिफरेंट नहीं होता, सेम होता है। जो फीस में $3 या $4,000 एनुअली का फर्क है, वो फीस वैसे भी आपने वीजा लगने के बाद, टिकट लेने के बाद, अमेरिका आके क्लासेस स्टार्ट होने के फर्स्ट वीक के अंदर आपने पे करनी होती है। तो यू हैव इनफ टाइम कि आप अपनी फीस मैनेज करके हर हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो। तो हाउ मच टोटल कॉस्ट विल बी फ्रॉम यूएसए टू पाकिस्तान? तो बेसिकली इसमें अगेन लाइक देयर इज अ रिपीटिंग क्वेश्चन। तो बेसिकली वो जो $510 आपकी गवर्नमेंट की फीस आ गई, और उसके अलावा जो टिकट है, अगेन टिकट आपको $700 से $800 में वन वे की टिकट मिल जाती है। एंड बाकी जो अगेन आपको जैसे कहा है कि यूएसए में कोई मेडिकल आपको नहीं कराना पड़ता, जैसे ऑस्ट्रेलिया के लिए आपको आई थिंक लाहौर जाके या कहीं और स्पेसिफिक क्लिनिक्स में जाके आपको प्रॉपर अपना मेडिकल रिपोर्ट बनवानी पड़ती है, वो भी आपकी तकरीबन 30 से 35 हजार की वो बन जाती है। तो वो सारी चीजें यूएसए में नहीं है। यूएसए में बेसिकली यू गेट योर एडमिशन, इनिशियली आपने हमें अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसके अलावा हम लोग इनिशियल साइन अप फी लेते हैं $50, जो मैं आपको प्राइस बताई थी उसमें इंक्लूडेड है। तो उसके बाद वो आपने पे कर दिया, हमने आपका एडमिशन प्रोसेस कर दिया। आपका जब एडमिशन आ जाएगा, आप तब हमें वो एडमिशन की रिमेनिंग अमाउंट देंगे, हम आपको I-20 दे देंगे, और उसके बाद हम वीजा का प्रोसेस शुरू करेंगे। आपका वीजा प्रोसेस हो गया, इंशाल्लाह आपका वीजा लग गया है, आप यहाँ आपने अपनी टिकट ले ली, आप अमेरिका आ गए, एंड देन यू पे योर रिमेनिंग फीस। आपको कोई मेडिकल की जरूरत नहीं है, जो इंश्योरेंस लेनी है वो यूएसए में आके लेनी है, और वो हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को लेनी पड़ती है, तो देयर इज नो लेवरेज ऑन दैट। प्राइसेस आगे पीछे हो जाती हैं हर जगह, लेकिन वो बेनिफिशियल ही होती है, क्योंकि ऐसे आप अपने प्राइवेट एक्सपेंस में मेडिकल कराएंगे तो वो आपको बहुत, यहाँ पे कोई भी जरूरत पड़ जाती है आपको क्लिनिक की, हॉस्पिटल विजिट करने की, अगर आपकी इंश्योरेंस नहीं है वो काफी महंगा हो जाता है, तो दैट डेफिनेटली हेल्प्स। उसके अलावा जो फीस है वो मैंने आपको बताया है कि 80% यूनिवर्सिटीज आपको पेमेंट प्लान बनाने की भी ऑप्शन देती हैं, उसमें आपको मंथली आप पेमेंट कर सकते हैं, और जो फीस है वो पे भी आप बाय सेमेस्टर वाइज करते हैं, और उसमें बस रूल पेमेंट प्लान का ये हो जाता है कि आप उसको इंटरवल्स में पे करेंगे, लेकिन आपको अपना प्रीवियस सेमेस्टर कंप्लीटली पे ऑफ करना पड़ेगा बिफोर यू कैन स्टार्ट योर न्यू सेमेस्टर। ये थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन आती है, लेकिन काफी लेवरेजेस आपको मिल जाती हैं थ्रू आउट द वे टू फाइनलाइज एंड टू पे। Let's continue. What type of job you can find in USA? तो लीगली हिसाब से यूएसए में जब आप पढ़ाई कर रहे हैं बैचलर्स या मास्टर्स की, तो आप 20 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। लीगल कैंपस पे कहीं पे भी आप काम करें तो 20 आवर्स पर वीक आप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर उसके अलावा आपने कैश पे करना है तो वो तो आप जितना कंटिन्यू करना चाहें। उसके अलावा विंटर ब्रेक जो आपकी आती है दिसंबर में, और समर ब्रेक जो 3 महीने की होती है, मई जून जुलाई, सॉरी जून जुलाई और अगस्त में, तो वो बल्कि 3.5 महीने की तकरीबन हो ही जाती है। वो ये होता है कि उसमें तकरीबन अक्सर लोग उसमें भी आपको फुल, उसमें एक्चुअली आपको वर्किंग राइट्स, आपके वर्किंग टाइम 40 आवर्स पर वीक हो जाता है जो एक स्टैंडर्ड होता है। तो उसमें लोग काफी अपने समर में कैंपस पे काम करके अपने फिर फीस और हर चीज मैनेज कर लेते हैं। तो वो जॉब्स आपको अब डिपेंड करता है कि आपको कैसी जॉब मिलती है। कैंपस पे अक्सर आपको लाइब्रेरी में
रिसेप्शन पे मिल जाएगी, किसी ऑफिस में आपको मिल जाएगी, वो ऑप्शंस भी अवेलेबल होती हैं। उसके अलावा अगर आप कैश पे करना चाहते हैं तो आप किसी स्टोर पे काम कर सकते हैं एज ए कैशियर, आप किसी रेस्टोरेंट में काम कर सकते हैं एज ए कैशियर या एज ए सर्वर, या जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज वहां पे आ जाती हैं। ये है अगेन, मैं आप एक चीज हर किसी को कहता हूँ, यूएसए में नॉट इवन यूएस, जनरली एक वेस्टर्न कंट्रीज में इफ यू आर विलिंग टू पुट इन द एफर्ट, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलता है। क्योंकि दे डू ऑनर वर्किंग मैन और वर्किंग वुमेन बेसिकली, क्योंकि जब आप काम कर रहे हैं यहाँ पे आपको उस हिसाब से रिजल्ट भी मिलता है, आपको उस हिसाब से पे भी मिलती है। एंड नॉट जस्ट ड्यूरिंग एजुकेशन, जब आप ग्रेजुएट करते हैं दैट कंटिन्यूज। आपको मैं अपनी एग्जांपल दूं आपको, तो एज ए मैकेनिकल इंजीनियर व्हेन आई कंप्लीटेड 3 इयर्स ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस, तो ऑटोमेटिकली हमारा एक पे ग्रेड है डिफाइंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर यूएसए के अंदर। तो बेस्ड ऑन दैट लॉ या बेस्ड ऑन दैट पॉलिसीज, बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से अ सर्टेन प्रोफेशनल, नॉट इवन मैकेनिकल इंजीनियर्स, कोई भी प्रोफेशनल 3 इयर्स से 5 इयर्स का एक्सपीरियंस गेन कर ले तो उनकी पे ग्रेड ऑटोमेटिकली एक सर्टेन अमाउंट हो जानी चाहिए। दैट इज अ सर्टेन रूल, वो हर कंपनी उसको फॉलो कर रही होती है क्योंकि वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने डिफाइन किया हुआ है। अगेन, आप अगर विलिंग है अपनी एफर्ट करने के लिए तो यू डेफिनेटली गेट द रिजल्ट्स। what about accommodation in USA? Accommodation USA में ऐसा है कि you एज अ स्टूडेंट ऑप्शन आपके पास ये होते हैं कि जितने भी स्टूडेंट मतलब यूनिवर्सिटीज हैं, आप कैंपस पे भी ले सकते हैं और आप ऑफ कैंपस भी ले। कैंपस में ये है कि आपको जो बिजली का बिल है, आपका इंटरनेट का है, आपके और सर्टेन जो बिल वगैरह आ जाते हैं, वो सारे आपके पेड ऑफ, मतलब वो इंक्लूडेड होते हैं आपके रेंट के अंदर। वो आप एक ही पेमेंट करते हैं और आपकी हर चीज कवर्ड आउट होती है। आप कैंपस पे रह रहे होते हैं तो आपको इजी एक्सेस है हर जगह से। अब कंपेयर टू ऑफ कैंपस अगर हम चले जाएं तो वो आपको तकरीबन हाफ द प्राइस, बल्कि हाफ से भी ज्यादा आपको मिल जाता है सस्ता कंपेयर टू ऑन कैंपस में। लेकिन अगेन उसमें यह है कि थोड़ा वो अपार्ट स्टूडेंट हाउसिंग का कॉन्सेप्ट बना होता है यहाँ पे ऑफ कैंपस। उसमें यह है कि आपके 3 या 4 रूम का अपार्टमेंट होता है, उसमें हर किसी को इंडिविजुअल रूम मिल जाता है और आपका जो किचन और जो बाथरूम वगैरह है वो आपका शेयर हो जाएगा। अब उसमें ये अक्सर लोग ये कर लेते हैं कि दोस्त मिलके 2 3 या 4 दोस्त मिलके ले लेते हैं। और अगेन, अगर आप इंडिविजुअली लेना चाहते हैं तो उसमें कोई इशू नहीं है, आपको मिल सकता है। आप 1 बेडरूम अपार्टमेंट लेना चाहें तो वो भी मिल जाता है। थोड़ा सा प्राइस का मैं आपको बता दूं, अगर आप शेयर करके 3 या 4, मतलब एक रूम में 3 या 4 लोग नहीं, अपार्टमेंट में 3 या 4 लोग हैं, वो आपका 300 से $500 के दरमियान में आराम से आपको मिल जाता है। कंपेयर टू सिटी, स्टेट, यूनिवर्सिटी, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, यूएस बहुत बड़ा है तो मैं आपको एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं बता सकूंगा, तो अनलेस वी हैव अ सर्टेन सिटी इन माइंड। लेकिन जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी तरह अगर आप कहें कि मुझे इंडिविजुअल रूम चाहिए तो दैट इज समवेयर बिटवीन 14 से 1800 डॉलर्स अ मंथ। तो इतना फर्क आ जाता है। तो आपको, इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल इन स्पेंडिंग योर मनी, यूएसए में आपको सर्वाइव करना इजी रह जाता है। और अगेन, वो तो हर कंट्री में ऐसा है कि वेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल विद योर फाइनेंसेस, आप उस हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि फर्क इतना ज्यादा पड़ जाता है कि अगर आप अपने आप को कैसे डायरेक्ट कर रहे हैं। ओके, लेट्स कंटिन्यू। हाउ मच टाइम पीरियड इस प्रोसेस इज रिक्वायर्ड? तो यूएसए के लिए ये होता है कि जो हम लोग प्रोसेस करते हैं कि आपने हमें डॉक्यूमेंट्स अपने एडमिशन के लिए दे दिए, तो अबाउट 4 to 5 वीक्स में हम आपको आपका I-20 जो है वो आपको डिलीवर कर देते हैं। तो जब आपके पास I-20 आ जाता है, वी स्टार्ट वर्किंग ऑन योर बेसिकली वीजा एप्लीकेशन। हम वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करते हैं इन अबाउट, सो लेट्स से वीजा प्रोसेस को हमें डेट लेनी है, हमें इंटरव्यू की तैयारी करनी है, महीना हम उसके लिए रख लेते हैं, तकरीबन अबाउट 30 डेज, और 4 to 5 वीक्स हमारे एडमिशन प्रोसेस का, एक्सक्यूज मी। तो उसमें अबाउट 2 से 2.5 मंथ्स के अंदर आपका प्रोसेस हो जाता है। डजंट मैटर बैचलर्स हो, डजंट मैटर मास्टर्स हो, तो उसमें कोई सच इशू नहीं आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन का, कैन वी ड्राइव उबर इन यूएसए?
उबर यूएसए में अलाउ नहीं है और किसी भी वेस्टर्न कंट्रीज में अलाउ नहीं करता, सिवाय ऑस्ट्रेलिया के। जैसे मैं पहले कहा, ऑस्ट्रेलिया आपको फुल वर्किंग राइट्स दे देता है जिसकी बेस पे आप कर सकते हैं। यूएसए में आपको उबर के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन आप सर्टेन जो दूसरी जॉब्स वगैरह जो मैं पहले मेंशन कर रहा था वो आप डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं, उबर वाली आपको नहीं होगी। how difficult it is to get a driving license in USA? कोई भी as such इशू नहीं है अगर आपको ड्राइविंग आती है। हाँ, ये है कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है तो वो आपको थोड़ी सी मैनेज करनी पड़ेगी। आपने इनिशियल कंप्यूटर अपना नॉलेज टेस्ट जिसे कहते हैं वो आपने दे दिया, और अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है तो आप नेक्स्ट डे जाके अपना ड्राइविंग टेस्ट दें और उनकी फीस दें और आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस आपको महीने के अंदर घर पे आ जाता है। तो कोई भी मुश्किल नहीं होता अगर आप प्रॉपर ड्राइविंग कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड स्विच करना भी इशू नहीं है। पर्सनली मैं जब ट्रैवल भी करता हूँ, अगर मैं पाकिस्तान में हूँ तो मैं आई कैन स्विच, वो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड स्विच करना इतना इशू नहीं होता। थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ता है, लेकिन देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। हाँ, यूएसए में आपको ये है कि अगर आपके पास पाकिस्तान का लाइसेंस है या किसी भी कंट्री का लाइसेंस है तो आपको यूएसए में अबाउट 6 मंथ्स ड्राइविंग आप कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन वंस यू क्रॉस दैट 6 मंथ्स मार्क और अगर आपको पुलिस ने रोक लिया तो वो फिर आपको ड्राइविंग लाइसेंस अपना दिखाना पड़ेगा। अगर नहीं है आपके पास तो उसमें फिर आपको वो फाइन या टिकट जो भी है वो आपको लग जाती है, क्योंकि 6 मंथ्स तक आप चला सकते हैं। इन द मीन टाइम आप अपना यूएस लाइसेंस प्रोसेस कर देंगे। जैसे मैंने कहा, इट डजंट टेक लॉन्ग, आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी है, अपना हाथ अपना थोड़ा क्लियर करना है राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे, एंड यू कैन प्रोसेस इट। अप्रोक्सीमेटली हाउ मच वी कैन अर्न अ मंथ इन यूएसए, ये आपका स्टेट और अच्छा जैन डू कंफर्म मी, आप एज अ स्टूडेंट पूछ रहे हो या आप एज अ वर्किंग प्रोफेशनल पूछ रहे हो आफ्टर ग्रेजुएशन? एज अ मास्टर स्टूडेंट, ओके। तो इसमें बेसिकली आपका ये आ जाता है कि एज अ स्टूडेंट आप जब जॉब कर रहे हैं तो दैट डिपेंड्स ऑन आपके स्टेट में है, किस सिटी में है और आप कौन सी नेचर ऑफ द जॉब है। मैं अगर आपको एक रफ एस्टिमेट बता दूं तो लेट मी जस्ट ओपन द कैलकुलेटर। अच्छा, इसमें आपका तकरीबन आपको मैं एक रेंज आपको दे देता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट नंबर तो डिपेंड्स ऑन सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। आपको तकरीबन $8 to $11 आपको मिल जाता है। अगर हम एवरेज लगा लें 9 हम कर लें तो दैट इज बेसिकली, अगर आप 40 आवर्स वहां पे काम कर लेते हैं कैश पे अगर आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा उस पे जा रहा हूँ, तो इसको फिर हम करें तो आप तकरीबन अबाउट 1500 यूएस डॉलर्स, 12 से 1500 यूएस डॉलर्स आप पर मंथ आराम से कमा सकते हैं। तो उसमें से ये है कि आप अपने एक्सपेंसेस निकाल के आप सेव करके वो आप अपनी फीस, जैसे मैं आपको कह रहा था कि पेमेंट प्लान वाली ऑप्शन, आप अपनी वो फीस मैनेज कर सकते हैं। और फिर जब आपकी ये विंटर और समर ब्रेक आती है उसमें आप फिर अपना जो आपको फुल वर्किंग राइट्स मिल जाते हैं, फिर आपकी स्टडी भी नहीं है तो, क्योंकि ये आप ज्यादा भी कमा सकते हैं, 12 से 15 जो मैंने आपको रेंज बताई आप ज्यादा भी कमा सकते हैं, लेकिन ऑनेस्टली दैट विल अफेक्ट योर एजुकेशन। तो अक्सर अच्छा, फिर एक और चीज ये भी होती है, कुछ लोग ये भी करते हैं दैट नीड टू सपोर्ट फॉर देयर फैमिली, के जिनकी फैमिली भी है पाकिस्तान में, जिन्होंने उनको भी पैसे भेजने हैं, तो वो फिर ये करते हैं कि अगर उनका फॉर एग्जांपल मास्टर्स के लिए आए, वो 2 साल का मास्टर्स है, वो फिर 3 साल में मास्टर्स करते हैं, ताकि उसमें फिर उनको ये लेवरेज मिल जाती है कि उसको एक्सटेंड करने पे, ताकि वो ज्यादा काम करके पैसे अपने लिए भी बना लेते हैं और घर भी भेज लेते हैं। तो अगेन यूएस में आपको हर ऑप्शन अवेलेबल है कि आप फुल एक्सटेंड पे जाके मेहनत करें और एजुकेशन साथ साथ करते रहे, आप फुल फोकस एजुकेशन पे करें, थोड़ा काम करें, आप वो अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मैनेज कर लेते हैं, लेकिन ऑन एवरेज 12 से 1500 डॉलर आप कमा सकते हैं यूएस में। टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ यूएसए की टॉप यूनिवर्सिटीज, तो there's a very long list। मतलब अगर आप टॉप 500 मुल्क में मतलब वर्ल्ड में अगर आप टॉप 500 यूनिवर्सिटीज देखें ग्लोबली, तो अमेरिका में तो आई थिंक 200 या 250 यूनिवर्सिटीज तो अमेरिका की है। तो उस हिसाब से आपको बहुत लंबी लिस्ट है। हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी उन यूनिवर्सिटीज, हमारी जो, देखिए मैं आपको थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो हमारी फर्म का है, 2 चीजें हैं, हम लोग 2 चीजों पे जरूर फोकस कर रहे होते हैं बाय डिफॉल्ट, वो हमें कोई कहे या ना कहे हम उन चीजों को ध्यान में रखते हैं। एक तो नंबर 1, हम जिस यूनिवर्सिटी में आपका प्रोसेस करें
वो सिटी लाइवली हो, ताकि आपको कैश जॉब लेने में या कोई और जॉब लेने में या आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब लेने में उस स्टेट में आपको मुश्किल ना हो, नंबर 1। नंबर 2, हम ये जरूर फोकस करते हैं कि वहाँ पे सर्टेन कम्युनिटी वगैरह भी हो, कि ताकि ये ना हो कि आप बिल्कुल ही रैंडम ब्रांड न्यू जगह पे जाके खड़े हो जहाँ पे आपके अलावा कोई और पाकिस्तानी नहीं है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। हम उन चीजों में नहीं जाते, क्योंकि अगेन अमेरिका बहुत बड़ा है, बहुत यूनिवर्सिटीज है, तो हम इन चीजों को जरूर जहन में रखते हैं व्हेन वी आर अप्लाइंग। अगर आप हमारे थ्रू प्रोसेस करते हैं तो ये चीजें बाय डिफॉल्ट हम लोग देख रहे होते हैं। अगेन ये हम लोग पॉसिबल इसलिए है क्योंकि हम लोग वी हैव अ लोकल रिप्रेजेंटेशन, स्पेशली यूएस के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी हम लोग अभी इंशाल्लाह प्रोसेस कर रहे हैं फॉर दैट, ताकि वो जो एक लोकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलती है वो कोई बीट नहीं कर सकता, क्योंकि हम आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी हर रूल के हिसाब से, पॉलिसीज के हिसाब से, क्योंकि हम आगे का जो आपके वर्क वीजाज हैं, आपका ग्रीन कार्ड है, हम वो भी प्रोसेस करते हैं, हम कनाडा की इमिग्रेशन भी प्रोसेस करते हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू कंट्री मतलब एज ए स्टूडेंट आ रहे हैं तो इट्स नॉट लाइक कि हमने आपका सिर्फ स्टूडेंट वीजा किया और हमने आगे का प्रोसेस छोड़ दिया, हम आपको आगे का प्रोसेस भी साथ लेके चलते हैं और वो भी हम साथ प्रोसेस करते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएसए यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट डुओलिंगो। बिल्कुल, यूएसए में अबाउट 90 to 95% यूनिवर्सिटीज डुओलिंगो एक्सेप्ट करती हैं और हम लोग डुओलिंगो की क्लासेस भी ऑफर करते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं उसमें हम बंडल अप करके आपको फर्दर हम डिस्काउंट्स भी ऑफर कर देंगे। व्हाट अबाउट पीआर प्रोसेस इन यूएसए? यूएसए में पीआर नहीं, यूएसए में ग्रीन कार्ड होता है और उससे पहले आपका बेसिकली ये है कि आपने ग्रेजुएट कर लिया, आपको मिल जाता है वर्क परमिट। अगर आप स्टेम मेजर हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स, आप किसी मतलब बेसिकली टेक्निकल मेजर में हैं तो आपको मिलता है 3 इयर्स का वर्क परमिट। अगर आप हैं नॉन टेक्निकल में, एजुकेशन में है, आर्ट में है, तो उसमें आपको मिल जाता है 1 साल का वर्क परमिट। अब उस टाइम में ये होता है कि जो हम टेक्निकल की बात करें या नॉन टेक्निकल भी, तो उसमें ये है कि ड्यूरिंग दैट टाइम यू स्टार्ट वर्किंग विद अ कंपनी, फिर वो कंपनी आपका आगे ग्रीन कार्ड प्रोसेस करती है। अगर आपकी कंपनी नहीं करती तो अगेन हम लोग भी प्रोसेस करते हैं, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं, तो हम आपका थ्रू आवर कॉन्टैक्ट्स एंड एवरीवन, तो हम उस बेस पे आपका ग्रीन कार्ड हम प्रोसेस करवा देते हैं। लेकिन अगेन कंपनीज का रूल होता है कि यू स्टार्ट वर्किंग फॉर देम और एटलीस्ट 6 मंथ्स आप काम करें उनके साथ और फिर उसके बाद ही प्रोसेस करते हैं। लेकिन मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज प्रोसेस कर सकते हैं। अगर वो ग्रीन कार्ड नहीं तो कम से कम आपका वर्क परमिट आपको एक्सटेंड आउट करवा देते हैं, क्योंकि अगर आपका नॉन टेक्निकल है और आपका 1 साल का वर्क परमिट है तो आगे फिर वो H1 में कन्वर्ट आप करवा सकते हैं। उसमें यह है कि आपका वो नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा हो जाता है। तो पहले तो आप स्टूडेंट वीजा पे थे, वो फिर आप स्विच हो जाते हैं नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा पे, वो आप एवरी ईयर रिन्यू करा सकते हैं फॉर अबाउट 10 इयर्स। तो उसके दौरान अगेन यू फाइंड अ कंपनी या आप हमारे से कांटेक्ट करें, हम आपका आगे का ग्रीन कार्ड का प्रोसेस कर देते हैं। तो देयर इज दैट डिफाइंड प्रोसेस बेसिकली ग्रीन कार्ड के लिए। What are the consequences if you are unable to pay the semester fee or installment on time for any reason? उसमें अगेन वो तो जैसे हर कंट्री का रूल है बेसिकली, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट के साथ मतलब योरसेल्फ यूनिवर्सिटी फिर गवर्नमेंट, ये सारे टाइड हैं। बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है, डीएचएस के एक सब्सिडियरी है यूएससीआईएस, उनका ये रूल है कि एज लॉन्ग एज आपकी जो अगर आपकी कोई पर्सनल इशू बन गया है कि आपके फादर की जॉब चलेगी, अल्लाह ना करे ऐसा इशू हो, लेकिन कोई भी इशू बन गया है कि जिसकी वजह से आप नहीं पे कर सके, तो यू कैन कम्युनिकेट विद द यूनिवर्सिटी, आप अपना केस उनको प्रेजेंट कर लो। तो एज लॉन्ग एज द यूनिवर्सिटी इज विलिंग आपको वो एक्सटेंड करने के लिए, वो वेव ऑफ तो नहीं करेंगे फीस आपकी ऑब्वियसली, लेकिन वो ये है कि वो अगर आपको एक्सटेंडेड टाइम दे सकते हैं, तो एज लॉन्ग एज आपका एज अ स्टूडेंट स्टेटस वैलिड है यूनिवर्सिटी के साथ, गवर्नमेंट आपको तंग नहीं करेगी, तो उसमें आपको ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आते। तो एज लॉन्ग एज यू कैन कन्विंस योर यूनिवर्सिटी, अगर आपका कोई पर्सनल इशू बन गया है या कोई और इशू बन गया है, तो अगर आपका स्टूडेंट वीजा उनके साथ या स्टूडेंट स्टेटस आपका वैलिड है यूनिवर्सिटी के साथ, आप उसको कंटिन्यू करवा सकते हैं। तो उसमें आपको हमारे क्लाइंट के साथ नहीं है, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था खुद, मेरे से सीनियर थे 2 ईयर सीनियर, उनके फादर की एक्चुअली डेथ हो गई थी, तो उनका लास्ट ईयर चल रहा था, तो उन्होंने फिर जाहिर है वो बर्थ सर्टिफिकेट एंड एवरी डॉक्यूमेंट वगैरह प्रेजेंट किया था, तो यूनिवर्सिटी ने उन्हें 1 साल का एक्सटेंडेड टाइम दे दिया था टू पे देयर फीस। तो वो ग्रेजुएट हो गए इन द मीन टाइम,
जॉब लग गई, अल्हम्दुलिल्लाह इनकम आ गई, तो उन्होंने अपनी फीस पे कर दी। तो सर्टेन केसेस में वो मान जाते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं, क्योंकि आपका कोई ऐसा केस नहीं है स्ट्रॉन्ग और आप जनरली जाके कहें नहीं मेरे पास फीस नहीं है, वो उसमें जरा मुश्किल हो जाता है, तो वो फिर आपके स्टूडेंट स्टेटस के ऊपर इशू बन सकता है। इज डुओलिंगो इजियर देन आइल्स? बिल्कुल, ये बिल्कुल इस हिसाब से है कि अगर आपका इजी एज सच नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपका डुओलिंगो में फॉर एग्जांपल 110 स्कोर आया है, जो बन जाता है आपका, सॉरी 105 अगर आपका है, तो आइल्स का बनता है 5.5 कन्वर्ट अगर आप करें तो। लेकिन आपका अगर आपने बैचलर्स में फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एडमिशन लेना है, बैचलर्स में आपको 5.5 पे कोई भी एडमिशन नहीं देता, लेकिन अगर आपका डुओलिंगो 105 है तो उस पर आपको एडमिशन मिल जाता है। तो कंपेरेटिवली इजी नहीं होता, लेकिन वो ये है कि उसका जो मार्क्स एक्सेप्टेंस है, कि अगर आपका 105, बल्कि मास्टर्स में 110 के ऊपर भी हो जाता है एडमिशन, जो आइल्स का 6 बनता है, लेकिन आइल्स के 6 पे लिमिटेड यूनिवर्सिटीज एडमिशन देती है, ज्यादातर 6.5 पे देती है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा लेवरेज आपको मिल जाता है कि आप जब अप्लाई करें तो आप उसको डुओलिंगो में थोड़े बेटर चांसेस होते हैं, आपका स्कोर बेशक अच्छा उस हिसाब से नहीं आता, लेकिन यूनिवर्सिटीज का एक्सेप्टेंस मार्क थोड़ा कम है, और जिसकी वजह से आपको एडमिशन मिल जाता है। स्कॉलरशिप फॉर मास्टर्स इन यूएसए, यूएसए में ये प्रोसेस है, यूएसए क्या मोस्टली वेस्टर्न कंट्रीज बिसाइड्स यूरोप, मैं यूरोप को इसमें नहीं डाल रहा, यूएसए, कनाडा, यूके, आप कहीं भी प्रोसेस करें, आपको बैचलर्स या मास्टर्स में फुल स्कॉलरशिप बहुत लिमिटेड होती है, जो रियलिटी है। पाकिस्तान में अगर आप देखें तो एचईसी की तरफ से आपको एक फुल फ्लाइट मिलती है, और एक और मिलती है, और इसी तरह यूके में आपको एक शेवनिंग मिलती है और एक कॉमनवेल्थ मिलती है। अब उसके अंदर और वो कंट्री लिंक भी नहीं होती है, जैसे यूएसए की फुल ब्राइट स्कॉलरशिप सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं होती, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड होती है। तो उसमें आपको एडमिशन लेना काफी कंपेटिटिव हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम फिर उसमें लोगों को रेकमेंड करते हैं कि आप अपना प्रोसेस करें एज अ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। हम देखें, हम ये चीज जरूर करते हैं कि हम आपका स्टूडेंट वीजा, जब हम आपका जो एडमिशन प्रोसेस कर रहे होते हैं, तो यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई स्कॉलरशिप ऑफर हो रही है तो पार्शियल स्कॉलरशिप, अब जैसे बैचलर्स में हमने रिसेंटली एडमिशन जितने भी हम लोगों ने करवाए हैं, हम 30%, 35%, कुछ को हमने 40% तक भी एडमिशन हमने करा के दिया है, तो उसमें 40% स्कॉलरशिप मिल जाती है। लेकिन वो अगेन केस टू केस डिपेंड करता है, तो उसमें फुल फंडेड मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पार्शियल स्कॉलरशिप डेफिनेटली अवेलेबल होती है, और हम जरूर अवेल करके देखते हैं आपके लिए। I have done BS in accounting finance recently. What should I do? I'm interested in MS in project management. ठीक है, इसमें बच्ची ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि मैं इंशाल्लाह आपको पर्सनली हम रीच आउट कर लेंगे, जिन जिन ने साइन अप किया है बेसिकली। हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं बल्कि हमारा जो बिजनेस का व्हाट्सएप है, एक सेकंड मैं आपको नंबर कंफर्म कर लूं। मैं 0019722156710, ओके, ये नंबर है, ये मैंने चैट में डाल दिया है। तो ये सारे बल्कि एक्चुअली सेव करके आप कोशिश करें कि आप हमें मैसेज कर दें। तो एक तो क्योंकि हम ये सेशन भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये सेशन भी आपको हम शेयर कर देंगे, और आप इसमें ये है कि आपको इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, और दूसरा आपको अगर फर्दर कोई गाइडेंस चाहिए या फर्दर डिटेल में हमने डिस्कस करना है, यूएसए नहीं या कोई और कंट्री का, तो हम इंशाल्लाह उस हिसाब से प्रॉपर्ली डिस्कस कर सकेंगे। तो डेफिनेटली आप ये नंबर सेव कर लें, एंड देन आप हमें कांटेक्ट कर लें, तो इंशाल्लाह हम टीम से कोई और या मैं पर्सनली खुद हम आपको इंशाल्लाह फिर केटर कर लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं वो स्कॉलरशिप के मास्टर्स के हवाले से, अमेरिका में ये है कि मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज आपको ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप्स भी देती हैं, जिसको कोई टीचिंग असिस्टेंटशिप भी कहता है, रिसर्च असिस्टेंटशिप भी कहता है, अलग अलग नाम है। उसमें ये है कि अगर आपको फुल टाइम मिल जाती है, वो कैंपस पे ही जॉब होती है, वो अगर आपको फुल टाइम मिल जाती है तो आपको फुल फीस आपकी गवर्नमेंट पे कर, यूनिवर्सिटी पे कर देती है, सॉरी। और अगर आपको पार्ट टाइम मिलता है तो आपकी पार्ट टाइम फीस यूनिवर्सिटी पे करती है।
लेकिन उसमें अगेन हम जब प्रोसेस करते हैं तो हम इनिशियली हम आपके एप्लीकेशन उस पर भी डालते हैं साथ ही, लेकिन जो एक रियलिटी है फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत रेयर केसेस होते हैं किसी को मिले, लेकिन ये होता है कि जब आप वहां चले गए हैं यूएस में, यू आर विद द यूनिवर्सिटी, तो आप फिर फर्दर अपने आगे के 3 सेमेस्टर्स आपको जीएशिप ले सकते हैं उसमें आपके, और बहुत डिपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे होते हैं, तो वो भी एक आपको लेवरेज मिल जाती है जिसमें आपकी पूरी फीस पे हो जाती है। अच्छा, as you mentioned, we can earn about $2,000 a month on this account. I think we can hardly pay. अच्छा, इसमें ये है कि जो आपके expenses हैं, मैं आपको जो मैं बेसिकली मैं elaborate जो मैंने किया था, उसमें ये था कि जब आप विंटर और समर वेकेशंस आते हैं, उसमें जब आप अपना एक्सटेंड आउट काम कर रहे हैं कि अक्सर लोग जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो सेल्फ सस्टेन है वो ये कर रहे हैं कि जो समर ब्रेक है 3.5 months की, तकरीबन 3 से 3.5 months, उसमें दे स्पेंड टाइम इन यूएस, वो काम करते हैं और वो अर्न कर लेते हैं, एंड दे अर्न इनफ फॉर अ होल सेमेस्टर फीस, बल्कि उससे ज्यादा ही कर लेते हैं, आई कैन गारंटी यू दैट। उसमें फिर उसके बाद ये होता है कि ड्यूरिंग द सेमेस्टर वो काम करके वो सेव कर लेते हैं, क्योंकि उनकी एक सेमेस्टर इन एडवांस फीस उनके पास हो चुकी है, तो वो फिर उस हिसाब से एक सिस्टम उनका चल जाता है। अगर उन्होंने पाकिस्तान विजिट भी करना है तो वो विंटर ब्रेक में विजिट कर लेते हैं, 3 हफ्ते की छुट्टियां आपको तब भी मिल जाती हैं, महीने की 3 हफ्ते की, तो उसमें फिर वो पाकिस्तान फैमिली को विजिट करते हैं, बाकी वो टाइम अपना वहां पे स्पेंड करके अपनी वो अर्निंग्स कर लेते हैं। अगेन ये व्हेन यू आर इन यूएस, वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं, और ये जो मैंने आपको 1000 बताया है ये बहुत एक रैंडम एवरेज है। इसमें अगेन अगर आप बिल्कुल फुल सेल्फ सस्टेन होना चाह रहे हैं तो उसमें यू कैन इंक्रीज योर वर्क आवर्स, क्योंकि आपका आवरली पे है, आप जितना काम करेंगे आप उतना कमा सकते हैं। तो बेसिकली वो आपके ऊपर थोड़ा आ जाता है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज कर रहे हैं और आप कितना टाइम उसमें पुट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिल जाता है। ऑब्वियसली आपने स्टडी भी करना है, तो एवरीथिंग इज देयर, लेकिन ये है कि देयर आर ऑप्शंस यू कैन पिक एंड यू कैन डिसाइड ऑन कि भाई आप आपके पास बेसिकली कंट्रोल है कि आप उसको कैसे फिगर आउट कर रहे हैं। देयर आर राउट्स, देयर आर ऑप्शंस अवेलेबल एंड देयर आर पैथ्स, और उसमें बेसिकली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस पाथ पे जा रहे हैं। In USA, master's duration is 1 year. USA में it's about 1.5 से 2 years का है duration. अगर आप चाहे तो उसमें 1 year में बहुत लिमिटेड लोग हैं, लेकिन अब कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो एक्सपेडाइटेड कर रही हैं 1 year का, लेकिन उसमें ये कि आपको भी क्रेडिट्स ज्यादा लेने पड़ते हैं, तो इफ यू आर बिलिंग फॉर दैट, लेकिन 1.5 में अक्सर लोग अपना कवर कर लेते हैं। उसके बाद वो थीसिस वगैरह होता है, लेकिन वो जॉब के साथ साथ थीसिस भी कवर कर लेते हैं फिर। I think we are on the dot. Like अगर किसी और कोई further questions हैं तो हम आप यहाँ पे भेज दें, हम उसको इंशाल्लाह टैकल कर लेंगे। बाकी अगेन जैसे मैंने कहा है कि ये नंबर आप जरूर सेव कर लें, बल्कि मैं आपको हमारी जो वेबसाइट है मैं वो भी इंशाल्लाह मैसेज कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आप लोगों ने साइन अप किया है, सो वी सी योर नेम, लेकिन हमारे पास आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डेफिनेटली आप हमें मैसेज कर दें यहाँ पे हमारे व्हाट्सएप पे, या आप हमारी मैं ईमेल भी बल्कि लिख लेता हूँ, तो हमारी वेबसाइट या ईमेल से आप हमें रीच आउट करना चाहें तो डेफिनेटली प्लीज फील फ्री, और बल्कि आप हमें रीच आउट कर लें ताकि हम आपको ये जो रिकॉर्डिंग हमने की है ये भी हम आपको शेयर कर देंगे, कि अगर फर्दर कोई इंफॉर्मेशन हम नहीं कवर कर सके या आप भूल गए हैं या आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आपके पास ये पूरा सेशन आपके पास आ जाएगा, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन हो, हमने एक बहुत ही ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में हर हिसाब से टैकल कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इसको हम आपके साथ शेयर कर देंगे, यूट्यूब का लिंक होगा हमारा, तो वो इंशाल्लाह आप उसको भी देख सकेंगे, और फर्दर कोई आपको डिटेल में डिस्कशन करनी हो फील फ्री आप उस पर मैसेज कर लें, माई सेल्फ और हमारे कोई सीनियर कंसल्टेंट्स होंगे तो वो डेफिनेटली आपको हम फैसिलिटेट कर लेंगे। और अगेन IELTS या डुओलिंगो की क्लासेस के हवाले से कोई क्वेश्चन हो, डू लेट अस नो। और डेडलाइन का थोड़ा सा मैं बता दूं, बैचलर्स के लिए डेडलाइन इज मिड जून, एक्चुअली एंड ऑफ जून तक भी चल जाता है, और मास्टर्स के लिए इट इज फर्स्ट कपल वीक्स ऑफ जून, मतलब उसके अंदर अंदर आपने, क्योंकि जो भी प्रोसेस है हमें आप कम्युनिकेट करें ताकि आपका अगस्त का जो इनटेक है अगस्त की एंड में आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, हम इंशाल्लाह उसको टैकल कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अगर हम उसको मिस करेंगे फिर हमें जनवरी की तरफ जाना पड़ेगा, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली रीच आउट, हम इसके हिसाब से प्रोसेस आगे चला लेंगे। 2.95 is not a bad GPA USA में। अगेन बहुत यूनिवर्सिटीज हैं, तो अगर हम एक स्पेसिफिक में नहीं तो हमारे पास
पर्सनली हमारे पास 150 प्लस यूनिवर्सिटीज है हमारे पैनल पे। उसके अलावा हम और यूनिवर्सिटीज डे बाय डे, क्योंकि हमारी रिसर्च टीम है यूएसए के अंदर लोकली, जो हमें और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस के हिसाब से हम लोग रिसर्च हमारी होनी होती है। तो अगर कोई और यूनिवर्सिटीज हैं तो हम डेफिनेटली उनको आपको एडमिशन हम 2.95 पे देयर इज नो प्रॉब्लम, हम करवा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू विल बी इन यूएसए फॉर मास्टर्स ही विल। जैन आपका क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मुझे। आई थिंक आप कह रहे हैं कि अगर $1500 हम पर मंथ अर्न कर रहे हैं तो मास्टर्स के लिए इनफ है या नहीं। अगेन मैं आपको कहा, देखो अगर आप इस तरह हार्ड एंड फास्ट रूल हम डिफाइन नहीं कर सकते यूएस के हवाले से स्पेसिफिकली, क्योंकि अगेन बहुत बड़ा है। क्योंकि न्यूयॉर्क में रेंट अलग है, एलए में रेंट अलग है, मिनेसोटा में अलग है, टेक्सास में अलग है, टेनेसी में अलग है, 50 स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो आपका बहुत ज्यादा वाइड रेंज हो जाती है आपकी जॉब के हवाले से भी, आपकी पे के हवाले से भी, क्योंकि यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग मिनिमम वेज डिफाइन कर रही होती है। तो हर जगह का मिनिमम वेज रेट डिफरेंट है, तो जो रेंज है वो बहुत ही वाइड रह जाती है। लेकिन अगेन मैं आपको जो कह रहा हूँ कि अगर आपने यहाँ पे सेल्फ सस्टेन होना है, आई एम नॉट जस्ट सेइंग रैंडमली, मैं आपको बेस्ड ऑन रियल लाइफ लोगों के बारे में बता सकता हूँ। लाइक हमारे पर्सनल मेरे साथ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने किया है, मेरे अपने क्लाइंट्स हैं जो कर रहे हैं। तो वो आपको जैसे कहते हैं ना, सुनी सुनाई, दे नॉट लाइक रैंडम बातें, मैं आपको बेस्ड ऑन मैथ और बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैं देख चुका हूँ लोगों को, मैं आपको उसकी बेस पे बता रहा हूँ। 2.62 अगेन डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा मेजर है आपका और हम कौन से स्टेट में फोकस कर रहे हैं। लेकिन 2.62 शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम अगेन। उसमें फिर हम देखने पड़ेगा हमें आइल्स या डुओलिंगो आपका कैसा स्कोर है, उसके हिसाब से फिर हम आगे प्रोसेस करेंगे। हम फर्दर जब आपकी प्रोफाइल हम देखेंगे, आपका इंटर में क्या रिजल्ट आया था, तो उसकी बेस पे हम आपको बेहतर गाइड कर सकेंगे। खाली जीपीए पे, जीपीए इज नॉट बैड, इस पे हम कुछ ना कुछ इंशाल्लाह ऑप्शन बना सकते हैं। At $500 we can reach the USA. Yes, बिल्कुल इसमें टिकट नहीं, अगर आप टिकट 60 डाल ले तो आई थिंक $1700 लाइक हमारे इसमें आपकी गवर्नमेंट की फीस, हमारी फीस, टिकट वगैरह डाल के आई थिंक डिपेंडिंग ऑन कब आपको टिकट मिलती है, कितने की मिल जाती है, तो $1700-1800 में एवरीथिंग इंक्लूडेड आप यूएस पहुंच सकते हैं। आगे का जैसे है पेमेंट प्लान और वो सारा मैंने आपको डिफाइन कर दिया। ठीक है, थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। रियली प्रोडक्टिव सेशन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी इसमें बेहतर ये होता है कि कोई क्वेश्चन किसी के ज़हन में नहीं है तो दूसरा बंदा पूछ सकता है। तो डेफिनेटली अगेन जैसे मैंने कहा है, मैम आपको ये यूट्यूब पे भी हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, वो अब आपको शेयर कर देंगे लिंक। तो एनी फर्दर डिटेल्स हम इंशाल्लाह आप हमारे कांटेक्ट कर लें, हम उस पर इंशाल्लाह फर्दर वन ऑन वन आपके साथ आपके केस को लेके हम आगे इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। तो अगेन थैंक यू ऑल, रियली अप्रिशिएट इट। आप लोग काफी एक्टिव रहे, एक्टिव ऑडियंस थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह व्हेन देयर इज अ नेक्स्ट सेशन और समथिंग, हम लोग अक्सर मंथली बेस पे हम लोग तो जरूर कर लेते हैं या बाई वीकली कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल रीच आउट अगेन एंड उसमें हम फर्दर अगर कोई और टैकल कर सकेंगे तो जरूर हम आई विल बी अवेलेबल। अगेन थैंक यू एवरीवन, सो एंजॉय योर रेस्ट ऑफ द डे। हमारा तो अभी यहाँ संडे स्टार्ट हुआ, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज।